नमस्कार। लक्ष्य फाउंडेशन की ओर से आप सभी भारतीय नागरिकों का हार्दिक स्वागत। आज 26 जुलाई 2021 22वां कारगिल विजय दिवस आज पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से 26 फॉर 26 इस उपक्रम के अंतर्गत 26 जाबाजों की 26 कथाएं 26 जुलाई तक हमारे सोशल मीडिया द्वारा आप तक पहुंचाई गई है। हमें पूरा विश्वास है कि इन कथाओं से आपने ज़रूर कुछ न कुछ प्रेरणा ली होगी। इस श्रृंखला की यह अंतिम कड़ी मैं अब आपके सामने लक्ष्य फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट अनुराधा प्रभुदेसाई को आपसे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद। Thank you, Ashwini. Young boys and girls, men and women of India, जय हिंद। आज के इस अंतिम कड़ी के प्रारंभ में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत को जिन्होंने अपनी फौजी ज़िंदगी की शुरुआत प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस अकादमी से की और नई नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाकर अपनी कार्य प्रवीणता, कुशलता और निष्ठा से नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का मकाम हासिल किया। कारगिल युद्ध के दरमियान जिस लेफ्टिनेंट कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई थी, 1999 के कारगिल युद्ध में 13 जैकरिफ का ये टाइगर जब दहाड़ देता था तब पाकिस्तानी फौज कांप उठती थी। और आज 2021 में जिसके सिर्फ आहट से चीनी फौज के पसीने छूट जाते हैं, जिन्होंने 38 साल इस देश की सेवा में समर्पित किए, वो कारगिल योद्धा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल आज हमें संबोधित करने के लिए यहाँ स्वयं उपस्थित है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, लक्ष्य फाउंडेशन के परिवार की ओर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। एक इल्तजा है सर, कारगिल युद्ध के उस माहौल के बारे में और आपके भिन्न भावनाविष्कारों के बारे में हमें अवगत करें। The Indian Army fought the battle in Kargil, codenamed Operation Vijay, in the year 1999, exactly 22 years ago. But it is still fresh in my mind as it happened just yesterday. This battle was unique, fought in very difficult high altitude terrain. And this battle, there was an enemy, of course. But before you could reach him, we had to fight the weather, the terrain, and the climate. The Pak Army was once again given a bloody nose by our brave soldiers, and all the infiltrators were evicted from the areas that they had occupied on our side of the line of control. My battalion, 13 Jackrif, the bravest of the brave, was lucky to get an opportunity to take part in Operation Vijay. And I myself consider to be very fortunate to have got the opportunity to command the battalion in the most defining phase in the history of the battalion, when the battalion played a very important role in turning the tide during Operation Vijay. During this operation, my battalion launched 4 successful attacks and captured 4 features in the Dras and the Mashko Valley subsectors. Given the terrain, the weather and the climate, it was a huge challenge, a very difficult task, but we had to do it, and we did it. For me, during the operation, there were moments full of pride, elation and joy that I experienced when we had success, during the better moments in the battle, and also anguish, anxiety and sorrows and grief at the loss of life, loss of friends and brave soldiers. The moments of courage and sacrifice made by the brave officers and Jawan of the Indian Army for the Naam, Namak and Nishan, without hesitation,
or a second thought whatsoever are difficult to capture in words. A war is the ultimate test for any army and its soldiers. Victory in war is achieved because battles are won, and at the cutting edge of every battle, it is the military skill of the troops, the camaraderie, the regimental spirit, and above all, the willpower and the resolve which determines victory. The credit for victory in Kargil will without doubt always go to the grit, determination and dedication shown on the battlefield by Jawan and young officers. They were there up front, not hesitating to make the supreme sacrifice. I'm happy that this year stories of 26 braves, the brave acts, are being covered by Lakshya Foundation. I'm sure that these stories will be a big motivation for the youth of the country and will inculcate a deep sense of patriotism in the youth for times to come. Jai Hind जय हिंद सर। and thank you. थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, दुश्मन को क्षमा करना हम भगवान पर छोड़ देते हैं। हाँ जी, दुश्मन को क्षमा करना हम भगवान पर छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान से उनकी मुलाकात करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे कहने वाले और उसे निभाने वाले हमारे भारतीय सैनिकों को पहले हम सलाम करते हैं और आगे चलते हैं। भारतीय सैन्य दल। आग से प्रखर है वो, पानी से गतिमान है, व्योम से भी ऊंचा है वो, धरती से सहिष्णु है, तूफानों से तेज है वो हमारी शान है, सरहद पे खड़ा भारत माँ का शेर दिल जवान है, गर्व है, नाज है तुम पर अभिमान, भारत देश की जनता का कोटि कोटि प्रणाम। माता की जय। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। जरा गौर से सुनिएगा। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। जी हाँ, जब हम मशको, द्रास, कक्सर, बटालिक, तुर्तुक इस इलाके की बात करते हैं, कारगिल योद्धाओं के असाधारण साहस की गाथाएं सुनते हैं, जब हम वहाँ की पहाड़ियों में गूंजे हुए और प्रतिध्वनित हुए युद्धघोष की कल्पना से कंपित होते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाकर उसे भागने पर मजबूर करने वाले गैलेंट एक्शन और सैनिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाले बहादुरों के जुनून से रोमांचित होते हैं, तब हम शुरुआत में उद्धृत किए हुए उन पंक्तियों का भावार्थ जान जाते हैं। और न केवल ये भूमि है दोस्तों, ये हमारी मातृभूमि है। तो आज की शाम इन रणबांकुरों के नाम। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। द्रास स्थित विजय स्तंभ पर तराशे हुए ये अल्फाज और स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए कारगिल युद्ध में लड़कर अमर हुए सैनिकों के नाम पढ़कर मन में पुनः पुनः यही प्रश्न उपस्थित होता है, क्या है ये जुनून, क्या है ये जोश, क्या है ये जज्बात कि हमारे 20, 22, 25 साल के बच्चों ने सूरा सो पहचानिए न लरे दिन के हेत, पूर्जा पूर्जा कट मरे कबो न छड्डे खेत। चाहे हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, हमें वो मंजूर है, लेकिन हमारी मातृभूमि का एक टुकड़ा तक हम दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। ये जुनून था। सलाम, सलाम इस डेडिकेशन को।
लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से हम आपके सामने विभिन्न फूल लेके आए हैं। उसका गुलदस्ता आपको बनाना है। अलग अलग बिंदु मैं रख रही हूँ आपके सामने, जिनको जोड़कर आपको एक रंगोली बनानी है और फिर थोड़ा आत्म परीक्षण करना है, थोड़ा अंतर्मुख होना है। तब आबो हवा में सुगंध होगा देश प्रेम का, रंग होगा देशभक्ति का और एहसास होगा अपनी जिम्मेदारियों का। तो चलिए बटालिक क्षेत्र में जहां कारगिल युद्ध की बातें करते हैं, ओवर टू बटालिक सेक्टर। यह है जुबार हिल। आप इन पहाड़ियों के रौद्र रूप को देख रहे हैं। कितना कठिन होगा दुश्मन के साथ यहाँ मुकाबला करना, जबकि दुश्मन ऊपर पहाड़ी पर बैठा था। ये पहाड़ी जो देख रहे हो वो पाकिस्तान की है और अब हम ये भारत में हैं। काफर हुन्नु बंदा मुरनुर निको, बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कावर्ड। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र पोस्टमस 111 गोरखा राइफल के ऑफिसर यहाँ शहीद हुए थे। I have stared death in the face, but he blinked first. जिनका परिचय इन पंक्तियों से ही होता है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, वो है देन मेजर, अब ब्रिगेडियर निवृत्त अजीत सिंह शेखावत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, बटालिक प्रांत में आप थे, तो आज हमें उस प्रांत के चैलेंजेस, अटैक्स, काउंटर अटैक्स, आपकी गैलेंट एक्शन, इसके बारे में सुनने के लिए हम बेताब हैं। सर, जय हिंद। सर जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर अजीत सिंह, 22 ग्रेनेडियर्स, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, मुसलमान चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर की हैसियत से ठीक 22 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर में खालूबार रिज के ऊपर कामयाबी का जो परचम लहराया, उसकी गाथा आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। अनुराधा मैडम, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी इस देशभक्ति की मुहिम में हमारी पलटन को शामिल किया। बटालिक एक बहुत ही खतरनाक इलाका है। वहाँ की पहाड़ियाँ नुकीली हैं, खड़ी हैं। 70 से 80 डिग्री की चढ़ाई, समुद्र तल से 17 से 18 हजार फुट की ऊंचाई पर। कोई हरियाली नहीं, कोई आड़ नहीं, ऑक्सीजन की भारी कमी और बड़े बड़े पत्थर जिनको हाथ लगाने पर वो नीचे की चाल शुरू कर देते हैं। टास्क मिला खालूबार रिज के ऊपर परचम लहराने का। 22 ग्रेनेडियर्स की 4 कंपनियां, 12 जैकलाई की 2 कंपनियां 30 जून 1999 को जुंगलुकपा नाला से रवाना होती है। चार्ली कंपनी 1 जुलाई तकरीबन 4:30 बजे खालूबार रिज से 50 मीटर नीचे तक पहुंचने में कामयाब होती है। उस समय दुश्मन का फायर अंधाधुंध आ रहा था। पत्थर लुढ़काने की कोशिश दुश्मन द्वारा जारी थी। सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए ग्रेनेडियर रेजिमेंट का सर्वदा शक्तिशाली का नारा और नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया और वो घाटी में गूंजने लगा। दुश्मन ने कुछ समय के लिए फायर बंद किया। 50 मीटर की जो खड़ी चढ़ाई थी, रस्सों की मदद से एक दूसरे को धक्का मार करके ऊपर से खींच करके उसको पार किया और 0500 बजे 1 जुलाई को तकरीबन 100 मीटर का इलाका
खालुवा रिज के ऊपर चार्ली कंपनी कामयाब हुई। पहला काउंटर अटैक दुश्मन का 1 जुलाई को आता है, विफल कर दिया जाता है। 2 तारीख को दूसरा काउंटर अटैक आता है, विफल कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से 3 तारीख को तीसरा काउंटर अटैक उनके कंपनी कमांडर मेजर सईद, ऐसा उसने अपना नाम पुकारा और ये कहने लगा कि हमें पता है कि आप लोग मुसलमान हो और इसलिए मैं आपको सरेंडर करने का मौका देता हूं। आप लोग सरेंडर करें और हम आपका ख्याल रखेंगे, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। इस बात को सुन करके मैं जोर से चिल्लाया, बास्टर्ड, सरेंडर करेंगे हम नहीं, सरेंडर करोगे तुम, क्योंकि मेरे 150 लोग तुम्हारे पीछे से चढ़ने में कामयाब हो गए हैं। इसके पश्चात वापस से फायरिंग शुरू होती है और इतनी भारी तादाद में फायरिंग करते हैं कि दुश्मन काफी मात्रा में हताहत होता है। इस प्रकार से तीसरा काउंटर अटैक भी विफल होता है। चूंकि अभी तक 72 घंटे बीत चुके हैं और रसद, गोला बारूद नीचे से नहीं आता है, क्योंकि हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं और बहुत कमी इन चीज़ों की होने के कारण और दुश्मन और हम लोग एक दूसरे के 50-70 मीटर के दायरे में फैले हुए हैं। तो उनसे बचने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए सिर्फ एक विकल्प मेरे पास था और वो था खुद की मोटर्स और आर्टिलरी का सेव अवर सोल फायर मंगवाने का। जीपीएस ग्रिड रेफरेंस खुद का दे करके ये फायर हमने हमारे ऊपर मंगवाया और ऊपर वाले से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि हम बच जाएं और दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाए। और 1 मिनट के बाद ये फायर हमारे ऊपर आता है, सटीक हमारे इलाके में गिरता है और चमत्कार होता है, दुश्मन नेस्तनाबूद होता है और उसको विड्रॉ करने के ऊपर वो मजबूर होता है। इस प्रकार से 96 घंटे की लड़ाई मुसलमान कंपनी ने खालुवा रिज के ऊपर 4 जुलाई 1999 तक लड़ी और हमारे देश को एक बहुत बड़ी कामयाबी और खालुवा रिज का वो इलाका प्रदान किया। इस लड़ाई के अंदर मेरे 10 वीर योद्धा शहीद हुए और 18 जवान, जेसीओ और ऑफिसर घायल हुए। मैं इन शहीदों और उनके परिवार को मैं नमन करता हूं और पूरे देशवासी से मेरा ये आग्रह है कि आप लोग शहीदों और उनके परिवारों का आदर करें और फौज के नुमाइंदों को सम्मान दें। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते। सर 2 साल पहले की बात है, हम मिले थे द्रास में और तब आपने मुझे एक कहानी बताई थी। वो मैं आज मेरे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्या हुआ था सर, जब पाकिस्तान के साथ करारा हमला कर रहे थे तब एक क्षण उनके मन में ऐसे आया कि मेरी मैगज़ीन जो है इंसास की मैं चेक करूं, और उनको समझा उसमें सिर्फ 6 गोलियां बाकी थी। तब देन मेजर हमारे अजीत सिंह ने 2 उसमें से जो राउंड्स थे वो निकाल के अपने जेब में रख दिए और लड़ाई की शुरुआत की। विचार ये था कि अगर मैं इस वक्त
दुश्मनों के हाथ में लग जाऊं, तो इससे अच्छा मैं ये करूंगा, एक गोली से मैं दुश्मन को उड़ाऊंगा और दूसरी गोली अपने कनपट्टी पर लगाकर वही मैं मेरी शहादत दे दूंगा। वो मौका नहीं आया। पूरी विक्ट्री लेकर अपनी पलटन के साथ नीचे आए, लेकिन सर आपने वो 2 जो राउंड्स थी वो आपके पत्नी को गिफ्ट करी थी और आपने कहा था मैंने उनको कोई गहने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने जब वो 2 राउंड्स देखे तब उन्होंने कहा था किसी भी गहने से ज़्यादा ये गहना मुझे पसंद है, और आज तक वो उन्होंने अपने गले में बांध के रखा है। सर आपके फैमिली को सलाम और आपके 22 ग्रेनेडियर को सलाम। सर आपके इस प्रेरणादायी अनुभव से एक सीख हमें ज़रूर मिली है सर, ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद। जबकि हमने आर्टिलरी की बात सुनी है, SOS फायरिंग की बात सुनी है, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी तोपों की धड़क भी हम सुन लेते हैं, जिन तोपों की आवाज़ से पाकिस्तानियों के दांत खट्टे हुए थे, हमारी बोफोर्स गन्स। (15 past 5, the 3rd of July, 1999. The first signs that the assault on Tiger Hills is about to begin. My God, they're hitting right on top. Each rocket can cover a range of 40 kilometers. In the next few hours, 160 rockets dug at the top of Tiger Hill with startling accuracy. अब हम मिलते हैं बटालिक सेक्टर में ही, जिस कैप्टन ने आर्टिलरी के अपने पलटन को लीड किया था। वो कैप्टन आज लेफ्टिनेंट कर्नल के हैसियत से काम करते हैं, कैप्टन आशीष कर्णी। हेलो सर, मोस्ट वेलकम। आशीष, आपको याद है आपने मुझे 2 कहानियाँ बताई थी आपकी पलटन की डेडिकेशन के बारे में, लद्दाख स्काउट के बंदे, और एक स्टोरी बताई थी। ज़रा वो भी आपके मुंह से सुनना हमें बहुत अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे प्लीज़? हाँ मौशी, इंडियन ट्रूप्स बड़े डेडिकेटेड और पेट्रियोटिक होते हैं। एक किस्सा जो मेरे साथ हुआ था, आई मस्ट शेयर विथ यू। लद्दाख स्काउट्स के ट्रूप जो मेरे साथ थे जुबर के अटैक के टाइम पे, उनमें से एक बंदा मेरे पास आया और कहने लगा, साहब ये JCO साहब मेरी ही ड्यूटी बार बार नाइट ड्यूटी लगाते हैं, तो मुझे लगा इसकी रेस्ट इसको नहीं मिल रही। तो मैंने उसको बोला कि यार वॉर टाइम है, सबको ड्यूटी देनी पड़ेगी। वो बंदा आगे कहता है कि साहब ड्यूटी लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अटैक पे नहीं ले जाते, मैं अटैक पे नहीं जाऊंगा तो मुझे सेना मेडल कैसे मिलेगा। दे आर वेरी पैट्रियोटिक एंड वेरी डेडिकेटेड। अनदर इंसिडेंट आई रिमेंबर, जब मैं एडमिट था सदर्न कमांड हॉस्पिटल में, एक बंदा मुझे मिला जो बिलोनी एम्प्यूटी था, घुटने के नीचे उसके दोनों पाँव कटे हुए थे। जब मैंने उसके साथ बात किया, बंदा बहुत चीयरफुल था, कहता है क्या बताऊं साहब, मॉपिंग अप ऑपरेशन चल रहा था, बायां पैर डाला, माइन के ऊपर गिर गया, फिर
जैसे तैसे गिरता हुआ मैं दाहिने पैर पे जंप मारा, वहाँ पे एक माइन था। जैसे ही मैं गिर पड़ा, मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि जहाँ मैं गिरा वहाँ पे माइन नहीं था। सी दैट काइंड ऑफ they are fearless, and as officers we are lucky to command these troops. थैंक यू वेरी मच आशीष। जबकि आपने लद्दाख स्काउट की बात छेड़ी है, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को लद्दाख स्काउट के बंदे से मिलाए। चलो मिलते हैं ताशी चैपल वीर चक्र किकी सोसो लारगायलो। सुबह उजाला होते होते हम ऊपर पहुंच गया। वहां पे पाकिस्तान का 32 बंदे था। वो कैसे पता चला? हमने एक जिंदा पकड़ा। पाकिस्तान का 5 जवान उधर ही हम मार गिरा। एक सिपाही हुनर से हमने जिंदा पकड़ा। उससे हम पूछा था कितना था, वो लोग 32 थे। वहां पे टेलीफोन लाइन बिछा हुआ था। सुबह के टाइम था, वो रोटी बना हुआ था, इतना गरम था। तो 5 मार गिरा। एक जो वहाँ जो मार गिरा है ना, उसके जेब में हमने देखा था 30 तारीख को हमारा 2 शहीद हुआ था, हम विड्रॉल हुआ ना। हमारा जो जवान से उसका जेब में से पैसा और बीवी का लेटर था, वो निकाल के पाकिस्तान वाला ने ले गया। कब? 30 तारीख को। 6 तारीख को वो मार गिरा ना, उसके जेब में से वो निकाला था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। बटालिक सेक्टर से हम जाते हैं कक्सर की तरफ। इस कक्सर की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि ये एक बिल्कुल एलओसी पर का विलेज है। एलओसी के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। और फिर भी वहाँ की जो स्कूल की बच्चियाँ हैं, वो जिस ढंग से गाती है, सुनना चाहेंगे आप? वो कहती है, हमें किसी चीज़ से प्यार नहीं, लेकिन हमें हिंदुस्तान से प्यार है। आइए सुनते हैं वो लड़कियाँ क्या कहती हैं। ना मोरे दौलत अवजई, ना मोरे शोहरत अवजई, ना दौलत अवजई, ना मोरे शोहरत अवजई, अवजई अवजई यार मोरे तोमी हिंदुस्तान अवजई, अवजई अवजई यार मोरे तोमी हिंदुस्तान अवजई। जब कक्सर की बात करते हैं तो हम याद करते हैं कैप्टन सौरव कालिया, कैप्टन अमित भारद्वाज, जिनकी कथा आप तो जानते ही होंगे और जो हमने 26 कथाओं में लिखी हुई है। उसमें और एक तीसरा किरदार था। देन मेजर विक्रम शेखावत सेना मेडल, नाउ कर्नल विक्रम शेखावत सेना मेडल। अब आपके साथ बात करेंगे। ये एक यादों का सिलसिला है। 2 साल पहले हमने कारगिल युद्ध में जो लड़े थे उनका सम्मान किया था, क्योंकि युद्ध को 20 साल हुए थे। और तब कक्सर में जो लड़े थे उनका कक्सर में, बटालिक में जो लड़े थे उनका बटालिक में, और द्रास में जो लड़े थे उनका द्रास में हमने सम्मान किया था। ये यादों के सिलसिले के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि तिनकों से बने पल, पल से बने लम्हे, और लम्हों ने वक्त को बुना। हर पल कोई किसी के साथ नहीं रहता, इसलिए रब ने यादों को चुना। तो ये अभी यादों की बारात है, और इसमें हम आमंत्रित करते हैं और आपको मिलवाते हैं कर्नल विक्रम शेखावत। वो क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। बच्चों, आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, आप अपने फादर मदर की रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप अपने फादर मदर के लिए कुछ भी करोगे? क्या आप अपने भाई बहन के लिए कुछ भी करोगे? सो आप ये सब क्यों करोगे? एक वर्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ वो है इज्जत। इज्जत बहुत बड़ी चीज है ना। अब लास्ट वाली बात होगी खुद की इज्जत। खुद की इज्जत भी जरूरी है। सो आप अपनी इज्जत के लिए कुछ भी करोगे। मुझे लगता है कोई भी आदमी, चाहे वो सिविलियन हो, फौजी हो, बिना ट्रेनिंग के हो, ट्रेनिंग वाला हो, अगर वो इज्जत को महत्व देता है तो वो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसके साथ का वो जवान हो, उसकी इज्जत को अगर वो समझेगा तो वो कुछ भी कर जाएगा। बच्चा पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर जाएगा। मैं मेरे जवान के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। जब जवान की इज्जत पहली चीज। दूसरा, आपको अच्छा लगेगा कि आपके परिवार का नाम खराब हो? नहीं लगेगा ना। अच्छा, वैसे ही मेरी पलटन, क्या फोरजाट, मैं फोरजाट की इज्जत को दाएं बाएं होने नहीं दे सकता। दूसरी बात,
जब मैं मेरे आदमी की और परिवार फोरजा उसकी इज्जत को कुछ नहीं होने दे सकता, मुझे लगता है अगर मैं इतना कर लूं मेरे देश की इज्जत कहीं नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, हम जब सैनिकों को पूछते हैं, हाँ जी, कि आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, उसकी वजह क्या है, सभी सैनिकों से एक ही जवाब आपको आएगा, पलटन की इज्जत के लिए। 2 राजरीफ के बंदों ने भी पलटन की इज्जत के लिए एक करारा हमला किया था तोलोलिंग की पहाड़ी पर। न केवल जवान, एनसीओज, जेसीओज, अफसर्स, बल्कि उनके पलटन के खानसमा और कारपेंटर तक उनके साथ लड़ाई में शरीक हुए थे। एक बताना चाहूँगी कि जो उनके साथ गए थे कारपेंटर, उनको एक बीमारी थी, उनको अंधेरे में दिखता नहीं था, और ये पहाड़ी तो पूरी अंधेरे में चढ़े थे, तो वो कैसे गए। देन उनके जो कंपनी कमांडर थे मेजर मोहित, आज भी उनके बारे में आदर से अपनी भावना व्यक्त करते हैं। मोहित सर, क्या नाम था उनका और कैसे चढ़े थे वो? हाँ नहीं मैम, वो अपने सामने वाला चलता था, उसके उस साथ में उसने रस्सी बांधी हुई थी अपने कमर से, ताकि उस रस्सी को पकड़ते रहते थे, और जैसे वो आगे बंदा चलता था या तो उसका शोल्डर पकड़ लेते थे और रस्सी पकड़ के उसके साथ साथ चल के ऊपर जाते थे और नीचे आते थे। जी सर, एक बार वापस उनका नाम पूरा। नायक उत्तम कारपेंटर, नायक कारपेंटर उत्तम सिंह। नायक कारपेंटर उत्तम सिंह, उनके लिए हम जोरदार तालियां। कोई भी लड़ाई टीम वर्क के बगैर जीती नहीं जाती है। यहाँ इन्फेंट्री थी, आर्टिलरी ने काम किया था, वैसे सपोर्टिंग आर्म्स थे, उसमें सिग्नल्स थे, उसमें कोर ऑफ इंजीनियर्स था, उसमें मेडिकल कोर था, और मुझे आपको मैं बताना चाहूँगी कि आर्मी पोस्टल सर्विस, शायद हमें पता नहीं कि ऐसी भी एक सर्विस होती है। जी हाँ, हमारे बंदे जहाँ 17,000 फीट पर, 18,000 फीट पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनके घर वालों के जो खत आते थे वो उन तक पहुंचाने का काम हमारे आर्मी पोस्टल सर्विसेज ने किया था। दिन रात अथक मेहनत उन बंदों ने की थी। क्या लगता होगा 18,000 फीट पर? अगला क्षण मेरा नहीं है और मेरे घर से चिट्ठी आई है। शायद अगला क्षण मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं घर में चिट्ठी लिखता हूँ जो मेरे घर पहुँच जाएगी। ये एक कुछ अजीब बात है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं आता है। हर एक फ़ौजी ने मुझे यही कहा कि मासी, वहाँ जो ख़त आता था वो हमें बहुत हौसला अफजाई करने के लिए मदद करता था। वैसे भी था एक रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर। ये जो खच्चर आप देख रहे हो, जी हाँ, आपको लगेगा ये मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन जहाँ हमारे व्हीकल्स नहीं जा पा रहे थे, वहाँ इन पोनी और खच्चरों ने और गधों ने पूरे सामान अपने साथ उस इलाके तक, तोलोलिंग की और थ्री पिंपल के इलाके में लेकर गए थे। हमारे कारगिल युद्ध में उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया था। तो अब हम राजरीफ की बातें करने वाले हैं, द्रास की। जब हम द्रास निकलेंगे तो पहले आपको दिखाई देगा ये तिरंगा, लेकिन वो लहरता इसलिए नहीं कि वहाँ हवा है, वो लहरता ही इसलिए है कि वहाँ हमारे जवानों ने आखिरी सांस लिया है। जब मैं उस वीर भूमि में खड़ी रहती हूँ, जब मैं वहाँ के स्मारकों के पास खड़ी रहती हूँ, तो मेरे मन में यही आता है कि भले इन वीरों के शरीर छीन ले गए, लेकिन उनका चैतन्य आज भी बरकरार है और दूसरों की ज़िंदगी में चैतन्य आज भी वो जागरूक कर रहे हैं। मैं जब वहाँ खड़ी रहती हूँ, जहाँ हमारे ये युवा वीर सोए हुए हैं, हम कहते हैं, तो वहाँ से एक आवाज़ मुझे आती है। उस शांति में वो आवाज़ मेरे कान में आती है कि मैं गया ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं गया ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, तेरी रक्षा के लिए माँ मैं फिर इस धरती पर आऊँगा। ये है हमारे सैनिक। आज उसी
तोलोलिंग की पहाड़ी के नीचे जहाँ से हमारे ये बंदे चढ़ाई करने के लिए ऊपर बर्बाद बंकर तक गए थे, वहाँ हम अब खड़े हैं और हमारे कैप्टन 2 राजरिफ के कैप्टन विजेंद्र थापर वो इसी रास्ते से चले थे ऊपर, और आज उनके बारे में बात करते हैं उनके पिता कर्नल थापर साहब। कुछ फौजी पाकिस्तानी भाग गए, 1-2 मार दिए वहाँ पे। तो उनका जो चिट्ठी आई थी उसमें बड़ा गुस्सा था कि 2 आदमी बच के भाग गए हमारे हाथ से। तो इस तरह से था। ऊपर जो था उस दिन रात को बहुत ठंड थी, -15 डिग्री और खाया नहीं था खाना बहुत दिन से, मतलब ठीक तरह से खाना खूना नहीं खाया था 2 दिन से। ऊपर जाने के बाद उनको पाकिस्तान के स्टोर मिल गया था। तो पहले तो आपस में चर्चा हुई उनकी कि जहर ना डाल दियो, मर जाएंगे ये वगैरह। फिर उनके कंपनी कमांडर ने बोला कुछ नहीं होने वाला, खोलो इसको। फिर मिल्क मेड के डब्बे थे, उसमें पाइनएप्पल वगैरह मिक्स करके खा लिया, और सर्दी बहुत थी जैसे मैंने आपको बताया। तो उन्होंने पाकिस्तानी के बटर के डब्बे थे वो फाड़ दिए, उनको आग लगा दिया और अपने गर्मी से बैठ गए। जैसे ही ये विजेंद्र थापर की बात हमने सुनी, तो अब हम चल रहे हैं लिमोचिन विलेज। ये लिमोचिन विलेज क्या है? तो द्रास की जो पहाड़ी है, ये तो तोलोलिंग है, टाइगर हिल, मस्को वैली, इसके सामने ये लिमोचिन विलेज की पहाड़ी है, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है। वहाँ जाकर हम सुनेंगे 2 राजरिफ के जोश को, और पता चलेगा हमें कि उन्होंने तोलोलिंग किस हालात में और कैसे जीता था। तो चलेंगे लिमोचिन विलेज 2 राजरिफ के साथ। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय बोलते हुए हम भी बिना डर भय के, कोई सिक्योरिटी कोई साइलेंस नहीं रह गया था, दोनों तरफ से मारो काटो, हम राजा रामचंद्र की जय वो अल्लाह अकबर करते हुए दोनों तरफ से भयंकर आपस में लड़ाई छिड़ गई थी। और पूरी रात ये लड़ाई चली। लगभग 4 बजे के लगभग हमारी कंपनी अल्फा कंपनी दूसरी तरफ से आ गई थी। हमारे उस समय तक मेजर विवेक गुप्ता समेत 10 जवान शहीद हो चुके थे। और पूरे इस रिज को हमने 12 जून 1999 को सुबह फर्स्ट लाइट होने से पहले कैप्चर कर लिया था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या एक्चुअल तोलोलिंग पर कब्जा हो गया है। और यहाँ नीचे से मेजर जनरल महेंद्रपुरी साहब बार हमारे सीओ साहब कर्नल रविन्द्रनाथ साहब से पूछ रहे थे कि क्या ये सही है कि आप टोलोलिंग टॉप पर हैं, लेकिन ये सही था। और सुबह हमने इस पूरे टोलोलिंग रिज पर तिरंगा फहरा दिया था। आप देख रहे हो ये जय हिंद, ये मेरे साथी हैं, और हम एक ही दिन के भर्ती, एक साथ ट्रेनिंग किए हुए ही साथी हैं, एक ही साथ नौकरी की है पूरी। जब 28 जून 1999 को हम 3 पिंपल पर हमला कर रहे थे और पाकिस्तान की जो फौजी थी वो नीचे भाग कर जा रहे थे, मैं ऊपर था, आप नीचे थे, तो उस समय उनके ऊपर ये फायर डाल रहे थे। और उसी समय एक LMG MMG या उनका फायर जो पूरा पृष्ठ आप देख रहे हो ये पूरा आया, और ये नाक कान और ये जो पूरी हड्डी है इसको लेकर गया। और उस समय ऐसे हालात भी नहीं लग रहे थे कि ये बचेंगे, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति और भगवान की दुआ, आप सब लोगों की दुआएं, उनके कारण ऑपरेशन आधार हॉस्पिटल में होने के बाद आज ये इस कंडीशन में। और उसी वक्त भी उन्होंने कहा था कि इतना ही मुझे लगा है, लेकिन मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट होने तक मैं नहीं रुकूंगा। ये कहने का जज्बा जी जोरदार तालियां। राजा रामचंद्र की जय कहने वाले 2 राजरिफ को हमारा सलाम। अब जब हमने बटालिक देखा, कक्सर देखा, द्रास की लड़ाई देखी, अब हम आगे निकलते हैं टाइगर हिल तक, जिसकी नुकीली चोटीदार पहाड़ी पर 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर ने दुश्मन के नाक में दम कर रखा था। टाइगर हिल सामरिक महत्वपूर्ण चोटी हासिल करने का जिम्मा जिन्हें सौंपा गया और उस जीत का सेहरा जिनके सर पर बांधा गया, वो है 18 ग्रेनेडियर के जो कमांडिंग अफसर थे, देन कर्नल, अब ब्रिगेडियर निवृत्त कुशल ठाकुर।
वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। अनुराधा जी, आपका और आपकी लक्ष्य फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक टाइगर हिल की बात है, आप तो हर साल कारगिल विजय दिवस पर उस स्थान पे जाते हैं द्रास में, और आपने तो तोलोलिंग की पहाड़ी और टाइगर हिल की पहाड़ी बहुत नज़दीक से देखी है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि तोलोलिंग को और टाइगर हिल की लड़ाई में मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स को हिस्सा लेने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त रहा है। तोलोलिंग की लड़ाई सबसे पहली लड़ाई थी जो कि 18 ग्रेनेडियर्स ने 22 दिन लड़ी और 2 राजरीफ के साथ मिलकर 13 जून 99 को उस पर विजय हासिल की। और इस लड़ाई में मेरे 25 रन वाकुरे, 2 ऑफिसर्स, 2 जेसीओज और 21 जवान जो 18 ग्रेनेडियर्स के परिवार के थे, वो शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन जो मेरे सेकंड इन कमांड थे, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर राजेश अधिकारी जो कंपनी कमांडर थे, उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत लड़ाई मुश्किल थी और हमने 25 परिवार के लोगों को खोया। सर, आपने अभी जो बात की थी कर्नल विश्वनाथ, मैं बताना चाहूँगी कि कर्नल सचिन निम्बाळकर, देन कैप्टन, नाउ कर्नल सचिन निम्बाळकर, हमें हमारे एक युवा प्रेरणा प्रोग्राम में आए थे और तब उन्होंने उनके बारे में बहुत सही शब्दों में उनका वर्णन किया था। एक अफसर के बारे में, एक सैनिक, एक जूनियर ऑफिसर क्या कहता है, हम सुनते हैं कर्नल सचिन निंबाळकर से। त्यांचं फक्त एकच फोकस होतं, त्यांचे लास्ट जे वर्ड होते, अँड त्यांची जी डेथ झाली ती आमच्या सीओच्या लॅबमध्ये कर्नल कुशाल ठाकूरच्या म्हणजे हातामध्ये त्यांनी प्राण सोडला। आणि मरायच्या अगोदर त्यांना आम्ही इव्हॅक्युएट करायचा प्रयत्न करत होतो, तर त्यांनी म्हणलं की यार मला मुझे छोड़ दो, मैं बच नहीं सकता हूँ, और जवान जिनको गोलियां लगे, जो कैजुअल्टी हुए, उनको बचाने की कोशिश करो, मैं हो सकता है बच ना पाऊँ, तो इसलिए आप मेरे ऊपर एफर्ट मत करो। ये त्यांचे लास्ट वर्ड होते बिफोर ही डाइड। म्हणजे इवन व्हेन ही वॉज डाइंग, इट वॉज इन हिज माइंड दैट he should look after the safety and security of his men rather than his own safety. Sir, what a combination of authority and responsibility. आप बता रहे थे 18 ग्रेनेडियर के टाइगर हिल के विक्ट्री के बारे में, हम सुनना चाहते हैं सर आगे। तो अगले जो सबसे ऊंची चोटी जिसका आपने जिक्र किया, टाइगर हिल, जो आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी द्रास सेक्टर में है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 17,000 फीट है। और हमारे लिए ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण टास्क था, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। खड़ी, सूखी और बिना तिनके के जो पहाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर है, और दुश्मन ने इसके ऊपर से बहुत घेराबंदी कर रखी थी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चोटी थी, सामरिक महत्व से, स्ट्रेटेजिकली और अन्यथा भी। इसलिए जो मैंने प्लानिंग बनाई उसमें सबसे पहले ध्यान में रखा गया कि किस तरह से इस लड़ाई में सरप्राइज़ हासिल किया जाए। तो जो प्लानिंग हमने की, हमने सामने से अटैक दिखाया तीनों दिशाओं से, लेकिन जो सरप्राइज़ एलिमेंट वो ये था कि जो मेरे कमांडोज थे, जिन्हें हम घातक कहते हैं, उनको पीछे के रास्ते से तकरीबन 100 डिग्री ग्रेडियंट से हमने जो है ऊपर चढ़ाया। और इस घातक टीम की जो कमान थी उसको कर रहे थे उस समय लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, और इसके जो घातक के जो कमांडर थे एनसीओज, हवलदार मदन लाल था। और ये जो जिनको परमवीर चक्र दिया गया, हवलदार योगेंद्र यादव, ये उस समय मात्र 19 साल के थे। और मेरी काफ़ी कैजुअल्टीज़ घातक की तोलोलिंग की लड़ाई में हुई थी, तो मैंने इस लड़के का काम देखा था वहाँ पर, तो मैंने इसको भी घातक प्लाटून में डाला था। तो ये बात है 3 और 4 जुलाई की 99 की, जब हमने ये हमले की तरतीब बनाई और दुश्मन ने ये सोचा कि हम सामने से आ रहे हैं,
और उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ था, जबकि हम पीछे की तरफ से घातक प्लाटून की मदद से और रस्सों की मदद से, माउंटेनरी इक्विपमेंट की मदद से, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल्स के हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स थे, वो जितने भी रॉक क्लाइंबिंग करके जो थे, हमने जो थे वो पीछे की तरफ से हमला किया। ये हमला तकरीबन हमने 7 बजे 3 जुलाई को शुरू किया और 4 जुलाई को सुबह जो है घातक जो थे वो बिल्कुल टाइगर हिल टॉप पर पहुंच गए। जब उन्हें पता चला पाकिस्तान के उन्होंने एकदम फायर खोल दिया और बहुत चोटी के ऊपर बहुत गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई। दुश्मन के जो 2 बंकर्स थे, हमारे घातक प्लाटून उनको कब्जे में करने में प्राप्त हुई, लेकिन दुश्मन ने वहाँ पे लोकल रीइंफोर्समेंट करके वहाँ पे और जो ट्रुप्स थे वहाँ पर लाए और उस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में जो हवलदार मदन लाल थे और उनके साथ 2 जवान थे वो शहीद हो गए। आर्टिलरी ने बहुत अच्छा काम किया और हम जो है टाइगर हिल टॉप को जीतने में सफल हुए। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो है मेरी पलटन 18 ग्रेनेडियर्स को सम्मान दिया गया। और आखिर में मैं युवाओं के लिए यही कहूँगा कि आर्मी में 2 बहुत अच्छी बातें हैं। एक तो अनुशासन, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर फ़ौज में आएँ, और दूसरा अगर जो आपका जो आज एक सेकुलरिज्म है, जो जाति से ऊपर, रीजनल से, कास्ट, क्रीड से ऊपर उठकर अगर जो भाईचारा अगर आपको कहीं भी देखने को मिलता है वो सेना में देखने को मिलता है। और चाहे वो सैनिक किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जाति का हो, बिल्कुल अपने भाईचारे के साथ रहते हैं। और आखिर में सबसे बहुत अगर अच्छा कैरियर है, चैलेंजिंग कैरियर है, आपको डेजर्ट्स में सेवा करने का मौका मिलता है, प्लेन्स में मिलता है, माउंटेन्स में मिलता है और बहुत सारी गतिविधियां हैं। वो इसलिए मैं चाहूँगा कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा सेना में आएँ और अपनी मातृभूमि की रक्षा तो है ही है, और साथ में जो ये प्रोफेशन है ये मेरे ख्याल विश्व में सबसे बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने आपका अमूल्य समय हमारे लिए दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। टाइगर हिल पर परचम तो लगाया, अब और एक मुश्किल फीचर काबिज करना बाकी था, वो था पॉइंट 4875। तीव्र 13 ऐसी जिनकी पहचान है, 2 परमवीर चक्र का सम्मान जिन्हें प्राप्त हुआ है, जिनके सीओ साहब आज GOCNNC है, जिन्होंने हमें शुरुआत में ही संबोधित किया है। आइए उनके रणबांकुरों को ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव को मिलते हैं और 13 जैकरिफ की कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी। केवल साहब का मैं आपको बताता हूँ, ये बड़े वहाँ उस टाइम भी चुस्तीली फुर्तीले। जब हम वापस आ रहे थे इनको ऐसा कुछ तो भी दिखा वहाँ पे लड़ाई के बाद, और वो जाके उन्होंने देखा कि भाई ये चीज चमक रही है क्या है। तो इनको सबसे बड़ी गन जो थी पाकिस्तान की वो इन्होंने कैप्चर किया था। जब हम है ना, वो गन उन्होंने छुपा के रखी थी और वहां से वो भाग गए थे गन छुपा के। लेकिन इनके बदौलत हमने जो भी आपने विक्रम बत्रा की फोटो देखी होगी, जो गन के साथ फोटोग्राफ है, अगर आपने फोटोग्राफ, वो गन इन्होंने पकड़ी थी। है ना, साहब भी वहाँ पे थे वो लड़ाई में। तो ये लड़ाई हमने 19 जून को हमने फाइनली कैप्चर पॉइंट 5140 हमने कैप्चर किया था। जिसको जो नारा था विक्रम बत्रा का कि हमने बोला था कैप्चर करने के बाद क्या बोलोगे आप, सीओ ने बोला था, उन्होंने बोला था ये दिल मांगे मोर, है ना, मतलब एक पहाड़ी हमने जीत लिया है, वो सिग्नल होता है कि हमने जीतने के बाद हम क्या बोलेंगे। दूसरे साइड से जो ब्रेव कंपनी गई थी उनका सिग्नल था वो या जीतने के बाद। तो वो जिन्होंने रात में तकरीबन 3:30 साढ़े 4 बजे एक ने वो आया पहले बोला, ब्रेव कंपनी है ना, ब्रेव कंपनी ने पहला वो पिक्चर जीता और डेल्टा कंपनी बाद में आई सुबह 4 बजे, और उन्होंने बोला ये दिल मांगे मोर। जब दोनों सिग्नल साथ में आ गए तो हमने बड़ा जश्न मनाया था उस दिन वहाँ पे भी। ये लड़ाई हमने खत्म करने के बाद हम गए 4875। जो आपको ये है ट्रायंगुलर पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो टाइगर हिल है। टाइगर हिल से आप नीचे जब आओगे दूसरा एक ट्रायंगल दिखाई देता है, दिखाई दे आपको, है ना। वो जो पोर्शन है पहला, इधर से जाते हुए जो पहला पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज 4875 वो हमें टास्क मिला दूसरा लड़ाई करने का। 4875 वो भी देख सकते हैं आप, बहुत भयानक है, इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि 4875 से पूरा मतायन एरिया, पूरा दराज एरिया दिखता है, इतना फायर वहां से हो रहा था।
उस लड़ाई में जहाँ पे विक्रम बत्रा की डेथ हुई है 5th नाइट को साइमल्टेनियस अटैक हुआ था। इधर टाइगर हिल पे अटैक हो रहा है 18 ग्रेनेड का, यहाँ पे 4875 पे हम अटैक कर रहे हैं। तो हमने 6 जुलाई को फाइनली ये पूरा का पूरा पोर्शन हमने जीत लिया। जब विक्रम बत्रा की, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र की जब डेथ हुई, तो जो हमारे जवान थे, है ना, ये लोग थे बाकी सारे, है ना, इन्होंने बोला कि हमें इनके सेंटेंस है, मुझे अभी भी याद है, मैं वहीं पे उन्हीं के साथ रहता था, कि भाई हमें अभी जीने का कोई अधिकार नहीं है ना, हमारा एक कैप्टन साहब की डेथ हुई है, हम अभी पाकिस्तानी को एक तो वहाँ उनको मारेंगे, नहीं तो हम मर के आएंगे। तो इतने जोश के साथ सिर्फ ये लोगों ने ही अटैक किया। और हमने 2 कहानियां आपको बताना चाहती हूँ। आपने अब तक तो एथॉस ऑफ आर्मी सब जान लिया था, अब जो बात है वो आपके लिए और माने रखेगी। 16 ग्रेनेडियर के कैप्टन संगवान, 22 साल का बंदा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक पैर माइन पर गिर गया। जब उनको अस्पताल में लाया गया था, तब उस बंदे को पूछा था, कैप्टन साहब आपके कोई रिग्रेट्स है? सुने उन्होंने क्या कहा। 22 साल का बंदा अपना एक पैर जाने के बाद भी कहता है रिग्रेट? किस बात का रिग्रेट? जब मैंने यूनिफॉर्म पहना था उसी दिन उसी वक्त से मैंने मेरा पूरा शरीर इस देश के लिए अर्पण करने की प्रतिज्ञा ली थी। फॉर नेशन टू नेशन, सब कुछ नेशन के लिए, मेरा कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी तो बेवकूफ़ है, मेरे शरीर का इतना सा हिस्सा लेके गए, पूरा तो मेरे पास है। कैप्टन सांगवान, यू आर अ यूथ आइकॉन। और एक मैंने आपको सपोर्टिंग आर्म में कहा था, कोर ऑफ इंजीनियर्स। ये जो कोर ऑफ इंजीनियर्स है वो सबसे पहले युद्धभूमि पर जाते हैं और सब युद्धभूमि सीज़फायर होने के बाद वो निकलते हैं। उसमें एक थे कैप्टन रुपेश प्रधान, वीर चक्र। ये 22 साल का बंदा, उनके जो साथी थे उनके साथ माइन डिफ्यूज़ कर रहे थे। 100 माइंस उन्होंने डिफ्यूज़ किए। लास्ट माइन था जो उन्होंने डिफ्यूज़ किया और धड़ाम, और उनके 2 हाथ उनके सामने उड़ गए। एक स्प्लिंटर उनकी आंख में गया, वो पियर्स किया उसने उनकी आंख को उस पिन ने, और उनका नेक कट हो गया। 22 साल का बंदा। वहां से बटालिक सेक्टर से पूना में आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर तक लाए गए। लड़ाई तो हमारे लिए ख़त्म होती है साहब, लेकिन इनकी ज़िंदगी की लड़ाई तब से शुरू होती है। हमारे फौजियों के जब उनकी डिसेबिलिटी होती है, उनकी ज़िंदगी की लड़ाई तब से शुरू होती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन 22 महीने के बाद वो खुद खड़े हुए आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर से आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के, तब उन्होंने क्या कहा होगा? उनको 100% डिसेबल कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कोई पेट्रोल पंप पे बैठना नहीं है, मैंने ये वर्दी पहनी है, मैं मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस वर्दी में काम करूँगा। और उन्होंने पहले क्या बोला? उन्होंने कहा आई नेवर आस्क्ड व्हाई मी, आई नेवर आस्क्ड व्हाई मी, मैंने यही पूछा व्हाट नेक्स्ट, अब आगे का प्लान क्या है, ये मैंने अपने आप को पूछा। मैं आज के युवाओं को कहना चाहती हूँ, आप हमेशा आज की परिस्थिति में इतने नर्वस हो जाते हो, आप इतने चिंतित हो जाते हो, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं होता, अब आगे क्या होगा, डरते हो। ज़रा इनकी भी बातें सुनो, ज़िंदगी में कैसे अपना मकाम हासिल करना है ये हम इनसे सुने। नेवर 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 से व्हाई मी, ऑलवेज से व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ माई नेक्स्ट प्लान, एंड देन लाइफ विल बी वंडरफुल। 26 जुलाई 1999 लड़ाई ख़त्म हुई और विजय दिवस घोषित हुआ। लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा देश मेरी पहचान, इस कंसेप्ट में हमने उस इलाके में जो लड़े थे ऐसे 70 सैनिकों का वहाँ सम्मान किया था। तो मुझे लगता है कि जब आज 26 जुलाई है तो हमारे उन रणबांकुरों को हम क्यों ना याद करें। जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए, कदम कदम बढ़ाए।
खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौमों की तो कौमों पे लुटाए जा। हिम्मत मेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, हिम्मत मेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। जो सामने तेरे पड़े तो खाक में मिलाए जा, जो सामने तेरे पड़े तो खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ये सलामी दे रहे हैं, ये है कर्नल मोहित सक्सेना वीर चक्र, उनके बाजू में है कर्नल विक्रम शेखावत सेना मेडल, बाजू में है कर्नल राजनारायण, और अंतिम जो खड़े हैं वो है कर्नल प्रहलाद जेटली जो रिटायर्ड हुए हैं। कारगिल युद्ध भूमि की इस सफर में अनुशासन, निष्ठा, साहस, समर्पण और नैतिकता की महक थी। जोश, जुनून, जज्बात और अंगार की धार थी। फौजी परंपरा के आचार विचारों की धरोहर थी, और इन गुणों की कमी होने के कारण सब कुछ उनके पक्ष में होने के बावजूद भी दुश्मन की हार निश्चित थी। क्या नहीं था दुश्मन के पास? उनकी तो पांचों उंगलियां घी में थी। उनके पास LMG थे, MMG थे, UMG थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थे, उनके पास खच्चर थे, सामान था, टेलीफोन वायर्स थे, सुरक्षित बंकर थे। नहीं था वो जुनून, नहीं था वो जज्बा, नहीं था वो नेतृत्व, नहीं था वो आत्मविश्वास। वो भूल गए थे कि उनका मुकाबला शेरों के साथ है, प्रलय के साथ है, तूफान के साथ है, राष्ट्र के अभिमानियों के साथ है। पास नहीं कुछ भी देने को अपना यौवन देता हूं ऐसे कहने वाले त्रिशक्ति के साथ है, सुरमाओं के साथ है। और इसलिए हम बड़े गर्व से कहते हैं, मेरा देश मेरी पहचान है, लेकिन हमारे सैनिक हमारे देश की पहचान है। नमस्कार, आज मैं खड़ी हूँ कारगिल विजय स्तंभ के बाजू में। आज का 22वां कारगिल विजय दिवस समारोह अभी संपन्न हुआ है। जय हिंद की सेना। मैं मेरे पूरे लक्ष्य फाउंडेशन के मेरे फैमिली मेंबर्स को बुलाती हूँ और हम सब साथ में कहेंगे, मेरा देश मेरी पहचान। हो 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 हो। मेरा देश मेरी पहचान, मेरा देश मेरी पहचान। जान हमारी हिंदुस्तान, शान हमारी हिंदुस्तान, इस वतन पर हम कुर्बान। मेरा देश मेरी पहचान। ओ, 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 हिंदू सिख ईसाई मुसलमान, सबका एक ही सपना, एक ही अरमान। हिंदू सिख ईसाई मुसलमान, सबका एक ही सपना, एक ही अरमान। चुकाना है इस मिट्टी का एहसान। हो 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 मेरा देश मेरी पहचान।